میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگلے روز میں نے ایک مرتبہ پھر بابو جی کے دوستوں سے فردن ملاقات کی اور دوپہر کے وقت سالگرام سے ملنے ہوائی اڈے چلا گیا۔ بظاہر تو میں اسے بابو جی کے متعلق ہونے والی پروگریس رپورٹ دینے گیا تھا، لیکن اصل میں مجھے سالگرام کی اس روز والی گفتگو یہاں لے آئی تھی۔ سالگرام مجھے اپنی ایئر مین کینٹین میں لے گیا، جہاں اس نے اپنے دوسرے کارپورل ساتھیوں سے بھی میرا تعارف کرایا۔ یہاں سوائے ہوائی اڈے کے اور کوئی گفتگو سننے کو نہیں ملنی تھی۔ میری آنکھیں تو سالگرام پر لگی تھیں، جبکہ میرے کان وہاں موجود لوگوں کی گفتگو کو ذہن میں منتقل کر رہے تھے۔ ایک دو باتیں تو چونکا دینے والی تھیں، خصوصاً جب مجھے ایک خاص جگہ ہونے والی ڈیولپمنٹ کا علم ہوا تو میں چونک پڑا۔ اس سے متعلق آگاہی حاصل کرنے کا سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہاں خود جایا جائے، لیکن حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد بظاہر داخلے کی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی میری فراہم کردہ اطلاعات محفوظ ہاتھوں تک پہنچیں، فوراً وہاں داخلے کا حکم ملا، لیکن اکیلے آدمی کے لیے یہ چونکہ ناممکن تھا، اس لیے اس مرتبہ میرے ساتھ جسونت کو بھیجا گیا۔ ہماری ملاقات اس مرتبہ جگراؤں کے ایک 3rd کلاس ہوٹل میں ہوئی تھی، جہاں وہ پچھلے 2-3 روز سے ایک مشن کے سلسلے میں سرگرم عمل تھا۔ اتفاق سے جسونت میرے ارد گرد ہی کام کر رہا تھا، اور وہ پروجیکٹ جس کے متعلق مجھے اطلاعات حاصل ہوئی تھیں جسونت کا ہی ٹارگٹ تھا، لیکن اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود اسے ابھی تک کوئی اہم اطلاعات موصول نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے یہاں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے رکھا تھا جسے میں ہمیشہ کی طرح سنتے ہی اش کر اٹھا۔ جسونت نے اس ٹارگٹ سے متعلق ایک نائک اور ایک سپاہی کو اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ یہ دونوں ایک جگہ جوا کھیلتے ہوئے جسونت کی نظروں میں آ گئے تھے، اور ایسے لوگوں کا وہ پہلے ہی متلاشی تھا۔ پہلے نائک اس کے ہتھے چڑھا۔ کسی نہ کسی طرح جسونت نے اس ٹھکانے تک رسائی بھی حاصل کر لی تھی، جہاں اس کی اطلاعات کے مطابق چھوٹے رینک کے فوجی اپنی رم کی بوتلیں، جو انہیں خاصے کم نرخوں پر یونٹ سے مل جاتی تھیں، زیادہ قیمت میں دے کر فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس طرح حاصل ہونے والی آمدن کو وہ اسی ڈیرے پر جوئے کی بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ ڈیرہ اصل میں شراب کا ایک ٹھیکہ تھا جو باقاعدہ اجازت نامے کے تحت قائم ہوا تھا۔ ایسے ٹھیکے پنجاب کے دیہاتوں اور شہروں میں قدم قدم پر نظر آتے ہیں، جہاں سرکاری اہتمام سے شراب خانہ خراب اڑائی جاتی ہے، اور اس کی حدود جو عموماً چائے کے ایک سٹال جتنی بھی نہیں ہوتی، کے اندر غل غپاڑہ مچانے کی کھلی چھٹی ہوتی ہے۔ زیادہ تعداد ایسے ٹھیکوں کی ہے جہاں شراب سے متعلق دوسرے لوازمات کا بھی بندوبست موجود ہوتا ہے، تاکہ یہاں آنے والوں کو کسی قسم کی تشنگی کا احساس باقی نہ رہے۔ شراب کے ان ٹھیکوں پر بظاہر تو وہی شراب کی بوتلیں ہی سجی دکھائی دیتی ہیں جو بھارتی لیبارٹریوں کی تیار کردہ ہوتی ہیں، لیکن اندر خانے زیادہ تر گھٹیا قسم کی اور دیہاتی علاقوں میں غیر قانونی طور پر نکالی گئی شراب ہی بکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز بھارت کے اخبارات میں زہریلی شراب پینے سے واقع ہونے والی کسی نہ کسی مرتیو کا ذکر پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ جسونت کسی ایسے ٹھیکے کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا جہاں اس کے ٹارگٹ سے متعلقہ لوگوں کا آنا جانا رہا ہو؟ یہیں اس کی جہاں دیدہ نظروں نے نائک اندر موہن کو تاڑا تھا، جو رم کی بوتل سے حاصل شدہ آمدنی کو جوئے کی نظر کر کے اب للچائی ہوئی نظروں سے دوسروں کے بھرے ہوئے گلاس دیکھ رہا تھا۔ ایسے مواقع پر فوجی لوگ وردی پہن کر آنے سے تو رہے، لیکن جاسوس کی تربیت میں پہلا مرحلہ اسے اپنے پیشے سے متعلق افراد کی جان پہچان سے متعلق ہوتا ہے۔ اندر موہن کو اس کی وضع قطع اور چال ڈھال سے ہی جسونت نے پہچانا تھا۔ یہ سنیچر کی شام تھی۔ اگلے روز چونکہ اندر موہن کو چھٹی تھی، اس لیے وہ جسونت کے ساتھ جگراؤں سے باہر ایک ویران سی جگہ پر، جہاں کسی مہاشے نے تیزی سے بڑھتی ہوئی جن سنکھیا کی پیش نظر مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہوئے 10-15 کوارٹر بنا ڈالے تھے، چلا آیا تھا۔ نائک اندر موہن خود بھی کہاں آیا تھا، یہ تو اس بوتل کا کمال تھا جسے جسونت نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ رات اندر موہن نے جسونت کے ساتھ ہی گزاری اور صبح تک وہ پکے یار بن چکے تھے، کیونکہ جسونت بھی اتفاق سے اندر موہن کی طرح بہار کا ہی رہنے والا تھا، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ دونوں کی گوت بھی ایک ہی تھی۔ کافی دور جا کر ان کے بزرگوں کا سلسلہ بھی آپس میں مل جاتا تھا۔ جسونت نے اسے بتایا تھا کہ وہ مزدوری کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت دھندا بھی کر لیتا ہے، یعنی کبھی دیہاتوں سے شراب وغیرہ لا کر یہاں فروخت کر دیتا ہے، اس لیے تو وہ اتنے ٹھاٹ سے زندگی گزار رہا ہے۔ نائک اندر موہن ساری رات شراب پیتا رہا اور اپنی نوکری پر لعنت بھیجتا رہا، کیونکہ وہ دونوں ہمزاد تھے اور ایک ہی صوبے کے ایک ہی ضلع سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے جاتے سمے اس کی جیب میں جسونت نے زبردستی 100 روپے بھی ڈال دیے تھے، جو اگلے ہی روز اندر موہن نے جوئے کی نظر کر دیے تھے۔
नायक इंदर मोहन अपने एक जिलावाल साथी को भी, जो उसकी यूनिट का सिपाही था, जसवंत के पास ले आया। अब तीनों मिलकर रंगरलियां मनाते थे। जब मेरी मुलाकात उसने नायक इंदर मोहन और सिपाही टेकराम से करवाई तो दोनों उसके करीबन 2000 रुपये के मकरूज थे और उसके सामने उसके ज़रख़रीद ग़ुलाम नज़र आते थे। मेरा भाई है रिश्ते का, ससुरों को पंजाब में न जाने क्या दिखाई देवे है, जो सब इधर ही भागे चले आ रहे हैं। उसने दोनों से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। दोनों चेले जो शराब के नशे में डगमगा रहे थे, मुझे जसवंत का भाई जानकर मेरे पाँव में बिछे जा रहे थे। बमुश्किल मैंने उन्हें खुद से अलग किया, वरना वो तो मुझ पर कुर्बान होने को तुले नज़र आते थे। बड़े सुधाए हुए हैं, मैंने अपनी मखसूस ज़बान में जसवंत से हंसते हुए कहा। दया है भगवान की, उसने हाथ बांधते हुए इनकिसारी से झुक कर कहा। मुझे गैर मानूस ज़बान बोलते देखकर दोनों गधों ने नशे की तरंग में मुझे अवतार समझ लिया और मेरे सामने माथा रगड़ने लगे। हंसते हंसते मैं बेहाल हुआ जाता था। बमुश्किल समझा बुझाकर जसवंत उन्हें असली हालत में वापस लाया। वो कमबख्त तो कभी न उठते, लेकिन जसवंत ने उनसे कह दिया था कि ईश्वर गुस्से हो जाएंगे। गुरुजी, आज ही क्यों न किस्मत आजमाई करें, मैंने जसवंत को राय पेश की। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर किसी सोच में गुम हो गया। थोड़ी देर बाद ओके के मुख्तसर से अल्फाज उसके होंठों पर थरके। हम दोनों उन गधों को वही छोड़कर क्वार्टर से बाहर आ गए थे, जहाँ दूर दूर तक किसी शे का नामो निशान दिखाई न दे रहा था। अलबत्ता कभी कभी इस सड़क पर से कोई लारी ज़रूर गुजर जाती थी। नायक इंदर मोहन की क्वार्टर गाह ड्यूटी थी। उसे सज़ा याफ्ता फौजियों के सेलों पर पहरा देना होता था और रात को 8 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होनी थी। इस दौरान मैं और जसवंत ने दोनों की मदद से उस बटालियन हेडक्वार्टर का अपने जहन की मदद से नक्शा तैयार कर लिया था। अंदाज़न उसे मालूम था कि सज़ा याफ्ता फौजियों के सेल किस तरफ होंगे। सिवाय इसके कि जसवंत को आज रात के पासवर्ड का इल्म था और हमने इंडियन फ़ौज की वर्दियाँ ज़ेब-ए-तन कर ली थीं और कोई ज़्यादा राह हमारे पास नहीं था। ये आग में जानबूझकर छलांग लगाने वाली बात थी, लेकिन इसके सिवा चारा ही क्या था। अपनी जान से होली खेलने की इजाज़त किसी जासूस को नहीं दी जाती, लेकिन हमारा ताल्लुक़ किसी लामज़हबी मुल्क से नहीं। यही वजह थी कि हमने बेसरो सामानी के आलम में भी अल्लाह की खुसूसी मदद से वो काम कर दिखाए थे जो शायद दुनिया की बड़ी बड़ी जासूस एजेंसियों के एजेंट जदीद तरीन आलात जासूसी से लेस होकर भी अंजाम न दे पाए। हम दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर चलते हुए उन फौजियों के साथ अंदर दाखिल हो गए जो हमारी तरह बड़ी जल्दी में दिखाई देते थे। बटालियन हेडक्वार्टर के गेट पर खड़े मिलिट्री पुलिस के मुसल्लह गार्ड्स ने एक सरसरी नज़र हम पर भी डाली। उस हेडक्वार्टर में भांत भांत के लोग इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़ास नौइयत की मशकें की जा रही थीं। जिस यूनिट की वर्दियाँ हमने पहन रखी थीं उसके जवान भी यहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने इस बात की खुसूसी एहतियात बरती कि हम उनके नज़दीक तक न फटकें। मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही हम एक निस्बतन वीरान इलाके की तरफ, जहाँ दरख्तों की बहुतात नज़र आ रही थी, घूम गए। यहाँ इक्का दुक्का फौजी ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटियों की तब्दीलियों का वक्त था, इसलिए हर कोई अफरा तफरी में दिखाई दे रहा था। हमारा रुख दरख्तों की उस झुंड के पीछे बने दफातर की तरफ था, जहाँ मुख्तलिफ नौइयत की फ़ाइलें रखी थीं। ये दफातर 3 बजे के बाद बंद हो जाते थे। इसके बाद उस तरफ किसी का आना जाना भी कम हो जाता था। यहाँ पहुँचने के लिए हमें 2 जगह पूछने पर पासवर्ड बताना पड़ा था। हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से लाइट ऑफ थी, सिर्फ सर्च लाइट कभी कभी रोशन करके घुमाई जा रही थी। इसके अलावा भी इस हेडक्वार्टर के चारों अतराफ सर्चिंग टावर बने हुए थे, लेकिन हमने वो सब कुछ भुला दिया था। इस असना में किसी आमदा ख़तरे के पेश नज़र फ़रार होने के लिए रास्ते का भी इंतखाब कर लिया था। रात के वक्त ऐसे इलाके आम फौजियों के लिए भी ममनू होते हैं और बग़ैर ड्यूटी के उन जगहों के नज़दीक किसी का फटकना भी ममनू होता है। हम दोनों दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। अपने हदफ से चंद गज़ के फासले पर अचानक हम दोनों ज़मीबोस हो गए, क्योंकि एक साए को हमने दफातर वाले ब्लॉक के एक कोने से नमूदार होते देख लिया था। मेरा हाथ फुर्ती से अपनी जेब की तरफ गया और दूसरे ही लम्हे नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं साए पर टिकटिकी बांधे नजरें जमाए लेटा था। जसवंत की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। लेटे लेटे उसने एक मखसूस सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि मैं आगे निकलूं और वहां मौजूद पहरेदार को धोखे से अपनी तरफ मुतवज्जह करूं। इस असना में जसवंत को अपना काम कर गुजरना था। इशारा मिलते ही मैं कोहनियों के बल तेजी से ब्लॉक के एक कोने की तरफ रेंगने लगा। जसवंत के करीब से गुजरते हुए मैंने उसके हाथ का दबाव अपनी कमर पर महसूस किया। वो मुझे नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा कह रहा था। जसवंत ने मेरे मुखालिफ सिमत रेंगना शुरू कर दिया। ब्लॉक के एक कोने पर पहुंचकर मैं भी रुक गया। इस असना में वो साया दूसरे कोने पर पहुंच चुका था। पलट कर देखा तो जसवंत मेरे नज़दीक पहुंच चुका था।
तेज़ी से बने पुख्ता फर्श पर रेंगने की वजह से मेरी कोहनियों का बुरा हाल होने लगा था। मैं बरामदे के कोने पर दीवार के साथ चिमट गया, जबकि जसवंत मेरे कदमों के साथ रेंगता हुआ आगे निकल गया। वो बरामदे से मुंसलिक छोटी छोटी बाड़ से चिपक गया था। साय ने अपना रुख बदला। अब बरामदा उसके फौजी कदमों की आवाज़ से गूंजने लगा था। मैं अपने बेकाबू धड़कनों के साथ करीबन सांस रोके हुए उसकी आमद का मुंतज़िर था। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरी मतलूबा जगह पर पहुंच चुका है तो मैं अपनी जगह से निकला और बग़ैर आवाज़ पैदा किए अपनी जगह से सरक कर बरामदे के पिलर से आ लगा। गो कि ये अमल मैंने बग़ैर आवाज़ पैदा किए अंजाम दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि आने वाले ने मेरी ये हरकत नोट कर ली होगी। ये आखिरी और ख़तरनाक तरीन दाव था जो हम खेल रहे थे। अमूमन जासूस ये अमल उस वक्त दोहराते हैं जब कोई और चाराकार बाकी न रहे। हम यहाँ वक्त ज़ाया करने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते थे। किसी भी वक्त इंदर मोहन और उसके साथी की गैर हाज़िरी पर मिलिट्री पुलिस वाले मुश्तबा हो सकते थे, या किसी भी वक्त इस तरफ अचानक आने की तवक्को की जा सकती थी। हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आने वाला ठिठक कर रह गया और चंद सेकंड तक अपनी जगह जम कर खड़ा रहा। वो शशुपन में मुब्तला दिखाई दे रहा था। खैरियत ये गुजरी कि वो टार्च बरदार नहीं था। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे अभी दिल उछल कर हलक से बाहर आ गिरेगा। मेरे जिस्म की तमाम सकत आंखों से होते हुए अब हाथों में मुंतकिल हो चुकी थी। मैं किसी भी लम्हे बढ़कर उसका टेंटवा दबाने के लिए तैयार था। चंद सेकंड बमुश्किल ही वो अपनी जगह ठहरा होगा, लेकिन हमारे लिए वो चंद लम्हात सदियों पर मुहीत दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अपने मामूल की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अपने कंधे पर लटकी ऑटोमेटिक राइफल उसने दाएं हाथ में मजबूती से थाम ली थी। मुकम्मल तैयारी की हालत में नहीं, शायद अभी तक उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। और जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, बैक वक्त दो अतराफ से उस पर कयामत टूटी। जसवंत जो सरकता हुआ बरामदे की दीवार के बिल्कुल साथ चिपक गया था, अपनी जगह से इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म में लगे ताकतवर स्प्रिंगों ने उसे फिजा में उछाल दिया हो। वो उड़ता हुआ आया और हैरत ज़दा पहरेदार, जिसकी ज़बान अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से गुंग हो गई थी, कि मुंह पे मजबूती से हाथ जमाता हुआ ज़मीन पर ढेर हो गया। और मेरे दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल का दस्ता और बाएं हाथ की हथेली की ज़ोरदार ज़रब उसकी ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसकी दोनों कनपटियों पर क़यामत ढा गई थी। फाइन। मेरे इस तेज़ एक्शन पर जसवंत ने होले से सरगोशी करके मुझे दाद दी, मगर निगाहें उसकी बदस्तूर अपने शिकार पर थीं, जो बिल्कुल बेहोश हमारे सामने गिरा पड़ा था और जिसकी राइफल उसके हाथ से निकलकर बरामदे के नीचे कच्ची जगह पर जा गिरी थी। वो हर लिहाज से मुझसे कहीं सीनियर था। मुमकिन है उसके लिए ये कोई नई बात न हो। मेरे लिए बहरहाल ये सूरत हाल परेशान कुन साबित हो सकती थी। बेहोश पहरेदार को हमने चंद लम्हों में ही उसकी वर्दी समेत ही उसके हाथ पांव और मुंह बांधकर उसी बाड़ में फेंक दिया था जहां जसवंत छुपा रहा था। अव्वल तो वो सुबह से पहले होश में आ ही नहीं सकता था, और अगर बिलफर्ज वो होश में आ भी जाता तो चीखने चिल्लाने के मौके ख़त्म हो चुके थे। सर्च लाइट उस तरफ अभी तक तो घुमाई नहीं गई थी। अगर घुमाई भी जाती तो उसका रोशनी की जद में आना मुश्किल था। अब असल में मेरा वो काम शुरू हुआ था जिसमें मुझे खुसूसी महारत और जसवंत पर किसी कदर बरतरी हासिल थी। हम मुख्तलिफ कमरों के बाहर लगी नेम प्लेटों पर नज़र दौड़ाते उस मखसूस कमरे के सामने जा पहुँचे जिसकी हमें तलाश थी। जसवंत तो पिलर की आड़ में खड़ा अंधेरे में हालात का जायज़ा ले रहा था, जबकि मैं एक नज़र ताले पर डालकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। करीबन 1.5-2 मिनट तक सर खपाई के बाद बिलाखिर मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई और ताला खटाक की आवाज़ पैदा करता हुआ खुल गया। उसके बाद बेहोश पहरेदार की राइफल थामे जसवंत वाली जगह पर खड़ा हो गया, जबकि पेंसिल टॉर्च समेत वो कमरे में जा घुसा। जसवंत ने करीबन 10 मिनट अंदर लगाए थे। इस असना में एक मरतबा उसकी मदद के लिए अंदर जाकर मुझे फिर एक ताले पर जोर आजमाई करना पड़ी। जब 10 मिनट के बाद जसवंत बाहर निकला तो कामयाबी उसके चेहरे से झलक रही थी। असल में अब वो ख़तरनाक मरहला आया था जिससे बखैरियत गुजरते हमारी कामयाबी का दारोमदार था। हेडक्वार्टर के चारों अतराफ दीवार बनी हुई थी जिस पर खारदार तार लगे हुए थे, और रात को 8 बजे के बाद उनमें बिजली दौड़ने लगती थी। इसके अलावा थोड़े थोड़े फासले पर ऊंचे ऊंचे टावर बनाए गए थे जिन पर मशीन गनें नस्ब थीं। उनको कुछ इस अंदाज से नस्ब किया गया था कि इशारा मिलने पर हेडक्वार्टर के किसी भी हिस्से में उनसे फायरिंग की जा सकती थी और चंद मिनट के अंदर वो हमला आवरों को भून कर रख सकती थी। 3 बजे पहरेदार बदलते थे। हमने इसी वक्त को यहाँ से निकलने के लिए मुंतखब किया था। दोनों गधे जिन्हें हम जसवंत के क्वार्टर में छोड़ आए थे, उनके 24 घंटे से पहले होश में आने का कोई इम्कान नहीं था।
اس وقت بمشکل رات کے 12 بجے تھے اور ایسے اعصاب شکن حالات میں صبح 3 بجے تک یہاں چھپے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم دفاتر سے پرے ہٹ گئے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنے نئے شکار کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی رائفل جسونت کے کندھے پر لٹکی تھی۔ وہاں سے چرائے کے کاغذات کچھ تو میں نے اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے اور کچھ جسونت کے پاس تھے۔ ہم اب درختوں کے جھنڈ تک پہنچ چکے تھے اور وہیں بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ دونوں ہی ایک درخت کی مخالف سمت میں منہ کیے بیٹھے تھے۔ رائفل جسونت کی گود میں دھری تھی اور پستول میری جھولی میں پڑا تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی اکتا جاتے تو پلٹ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے۔ اس کے علاوہ وقت گزاری کا کوئی اور بہانہ ہمیں میسر نہ تھا۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔